Hello, children. You are welcome to Digi classes of Christ Church Convent Higher Secondary School, Gadawara. I am Amit Toshniwal, sir, your English teacher. This video is for class 8th. Subject is English. Lesson number 4. The Narmada, the lifeline of Madhya Pradesh. Can you tell me some river's name in Madhya Pradesh? Do you know? अच्छा, सबसे पहले ये बताओ कि तुम्हारे शहर में कौन सी नदी है? यस, करेक्ट, शक्कर, है ना? और नर्मदा जी? In your surrounding areas, nearby places like Bhatera, Kakara, Khakariya, Sokalpur, Bilthari, है ना? So many of you visit now and then, especially on occasion, religious occasion, Purnima, Amavasya, जाते हो ना नहाने के लिए? तो which river it is? Narmada ji. So Narmada ji is called the lifeline of Madhya Pradesh. Why? Why it is lifeline of Madhya Pradesh? Because through Narmada ji, many canals यानी नहरें बनाई गई हैं for irrigation of fields, है ना? So rivers are very useful to us. They are providing employment to number of people. बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलता है उससे. Then you have got sight scenes. आपको वहाँ पर बहुत नेचुरल ब्यूटीज़ मिलती है देखने के लिए उनके बैंक्स पर. नेविगेशन कर सकते हैं इसके थ्रू हम. फिशरीज होती है, लोग मछली पकड़ते हैं वहाँ पर. एंड जो नियर बाय पीपल हैं, जो उसके सराउंडिंग्स में रहने वाले लोग हैं, दे गेट एन एम्प्लॉयमेंट. रिलीजियस वहाँ पर फेयर मेला लगता है वहाँ, तो फिर दुकानें लगती हैं मेले में. तो ये नदियों से हमको होने वाले फ़ायदे हैं. ठीक है. अब वी आर स्टार्टिंग दिस लेसन. दिस इज़ एक्चुअली इन ऑटोबायोग्राफी फॉर्म. ऑटोबायोग्राफी मीन्स आत्मकथा. जब कोई व्यक्ति अपने बारे में स्वयं कुछ लिखता है या कहता है, सो इट इज़ कॉल्ड autobiography in English, and in Hindi it is called आत्मकथा. ठीक है. तो I am starting this lesson. You see on your screen, I am the river Narmada. I am proud that I flow in India, where a river is considered as a living being. हम नदियों को भी लिविंग बीइंग मानते हैं, उनको माता मानते हैं, देवी, गॉडेस, डेटी मानते हैं हम उनको. एंड वी वर्शिप द रिवर्स एज गॉडेस. सो इन इंडिया देयर आर मैनी होली रिवर्स लाइक द गंगा, द यमुना, द ब्रह्मपुत्र, द सिंधु, द गोदावरी, द कावेरी, द कृष्णा, द सतलज, एंड मैनी मोर. And people often go to their banks and take a sacred bath, and they feel purified. नहाने के बाद अपने आप को पवित्र महसूस करते हैं वो. So Narmada ji is the longest river in Madhya Pradesh, and people call me माँ नर्मदा. मतलब पीपल कॉल हर माँ नर्मदा. अपन बोलते हैं नर्मदा मैया. एंड शी टू लुक्स आफ्टर अस एज अ मदर. तो व्हाट शी इज सेइंग, नर्मदा जी क्या कह रही हैं? आई हैव abundant water. Abundant means plenty of, much water throughout the year. पूरे साल भर पानी रहता है यहाँ पर, सूखती नहीं है. And she irrigates the major part of the state.
It flows between Vindhyachal and Satpura mountains. So people call her the lifeline of Madhya Pradesh. What is the meaning of Narmada? Narmada means one who soothes and gives pleasures. Soothes means relaxation. Pleasure means happiness, ecstasy, आनंद, सुख. और soothes means relaxation, राहत देने वाला, है ना? So the other name of माँ नर्मदा is Rewa. It flows westwards. ये किस तरफ बहती हैं? पश्चिम दिशा की तरफ बहती हैं, पूर्व से पश्चिम की तरफ. And pours her water into the Gulf of Khambat. जाकर कहाँ मिलती हैं? डेस्टिनेशन कहाँ पर है? गल्फ ऑफ खंबात. खंबात की खाड़ी में जाकर के ये मिल जाती हैं. अदर रिवर्स जो हैं, आइदर दे फ्लो साउथवर्ड्स और ईस्टवर्ड्स, बट इट इज़ ओनली द रिवर इन इंडिया विच फ्लोज वेस्टवर्ड्स. एंड हर about her, मतलब about Narmada ji, you will find many holy books in which Narmada ji is depicted, mentioned, described. उनके नाम से तो एक पुराण भी बना हुआ है, नर्मदा पुराण, है ना? So what is the story of her birth? कैसे इनका जन्म हुआ नर्मदा जी का? एक बार once Lord Shiva was lost in meditation. समाधि में चले गए भगवान शिव मैकॉल रेंजेस पे. एंड 1000 of years he sat in meditation. Then his peaceful and soothing splendor took the form of a beautiful maiden. जब वो बिल्कुल शांत हो गए, रिलैक्स्ड हो गए, तो फिर वहाँ से एक खूबसूरत कन्या, मेडन कन्या का जन्म हुआ. एंड इट वॉज नर्मदा जी. So she bowed before Lord Shiva. Then Lord Shiva opened his eyes and told her that his creation has inspired a sweet tenderness in his heart. नर्मदा जी को देखकर उनके मन में एक सौम्यता का जन्म हुआ, मतलब हम्बलिटी, ब्यूटी उनको महसूस हुई, तो उनको नर्मदा नाम दिया. तो नर्मदा जी ने कहा शंकर जी से, ओ फादर, अलाउ मी टू रिमेन अ मेडन, मुझे कन्या ही रहने दो. एंड फ्लो फ्री एंड प्योर फॉर एवर, मतलब आई वॉन्ट टू फ्लो फ्री फॉर एवर, प्योरली. तो शिव जी ने कहा तथास्तु, लेट इट बी सो माई चाइल्ड, ऐसा ही होगा, तथास्तु, वरदान दे दिया. एंड अगेन ही क्लोज्ड हिज आइज. सिंस देन Narmada ji is have been flowing through the mountains, valleys and plains. तो माउंटेन से भी आ रही हैं वो, फिर वैलीज़ में आ जाती हैं, फिर पहाड़ों से, पठारों से, हर जगह से आ रही हैं. प्लेइंग, डांसिंग, जंपिंग, जिगजैगिंग मतलब टेढ़े मेढ़े रास्तों से होते हुए, गरगलिंग, आवाज़ करती हुई. तो लोग क्या करते हैं? पीपल जो भी वहाँ नर्मदा जी के किनारे जाते हैं, उनको देखते हैं, तो वो अपने पाप भूल जाते हैं. सिंस मीन्स पाप. सिंस हैव बीन एब्जॉल्व्ड, पाप धुल गए उनके. एंड देयर हार्ट्स आर फिल्ड विद प्योरिटी एंड सेरेनिटी लाइक दैट ऑफ माइंड. जितनी प्योर नर्मदा जी हैं, जितनी शांत नर्मदा जी हैं, जितनी सौम्य नर्मदा जी हैं, वैसा वो खुद भी महसूस करते हैं. ठीक है? सो दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट. अब थोड़ा बहुत लेसन और इसका बचा है. आई विल एक्सप्लेन यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.